فرما دیں کہ ذمہ داران جیسے غصہ آ جاتا ہے، بڑے غصہ کر دیں تو ہم کس طرح صبر کریں؟ اچھا یوں ہے، مطلب نہ بڑوں کو غصہ کرنا ہے نہ چھوٹوں کو غصہ کرنا ہے. بعض اوقات چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے سے غصہ کرتا ہے کہ بڑا بھی ہل جاتا ہے. کئی نگران آپ کو ملیں گے جو اپنے چھوٹوں سے بیچارے تنگ ہوں گے. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. نرمی اختیار کرنی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا. یہ کہ کام بڑھانے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیسے توریت شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے بھی زیادہ چاہنے لگیں گے، جو کچھ بھی نہ دے لیکن خالی مسکرا کر دو میٹھے بول دے تو وہ دل پہ نقش کر جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو، ماتحت ہو یا اوپر ہو، سب کو چاہیے کہ نرمی اختیار کریں اور مسکرانے کی عادت بنائیں. مسئلہ ہے کہ عادت نہیں بنتی، اور یہ اکثریت کا حال ہے. جب اپنا مطلب ہوگا تو کبھی مسکرا لیں گے. جیسے کہ بزنس مین ہے، شاپ پر کوئی کسٹمر آیا، اب اچھا کسٹمر ہے، بڑا کسٹمر، پھر تو مسکراہٹ سمجھے بہت نکل رہی ہے. چھوٹا کسٹمر آیا تو کم مسکراہٹ ہوگی، اور اگر وہ نہیں لے گا، نہیں لیتا تو پھر وہ مسکراہٹ بعض اوقات نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، غصے میں بدل جاتی ہے. تو یوں یہ کاروباری لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے مسکراتے ہیں. تو ہم لوگوں کا بھی تو مطلب ہے نا کہ اگلا نمازی بن جائے، کرائم چھوڑ دے، نیک بن جائے. تو یہ ہمارا مطلب ہے، یہ ہمارا بزنس ہے ایک طرح کا. تو ہم بھی اگر مسکرا کر بزنس کریں گے تو بزنس زیادہ چلے گا، اور غصہ کر کے منہ پھلا کے اگر ہم بزنس کریں گے تو کسٹمر کم آئیں گے ہمارے پاس. اس لیے سب یہ بیٹھے بیٹھے آن کی آن میں تبسم کورس پورا کر لیں. اس طرح کا کورس ہے نہیں اپنے یہاں. اب ایسا کورس کروانے والا کہاں سے لائیں؟ تبسم کورس کر سکے خود بھی تو اس کا متبسم ہونا ضروری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام یہ بھی ہے، متبسم، یعنی تبسم کرنے والا، مسکرانے والا، اسمائلنگ پرسن بن جائیں سب. تو انشاءاللہ پھر دیکھو کام آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا. اجتماع میں جیسے لوگ اول تو ملتے ہی نہیں ہیں، رستہ دے دیتے ہیں. اگر کوئی دو چار ملیں گے تو اس میں جو مسکرا کر ملے گا نا وہ ذہن میں نقش ہو جائے گا. اور نیا اسلامی بھائی جو آئے گا نا دوسری بار، وہ اسی کو ڈھونڈتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، بڑا اچھی طرح ملتا ہے، طبیعت پوچھتا ہے جیسے پرانی کوئی جان پہچان ہے. تو مسکرا کر ملنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کام تیزی سے بڑھتا ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مسکرانے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ اگلا کوئی ناراض بھی ہوگا تو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں. مجھے ایک ماضی کی یاد آئی، کوئی مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا، مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا، اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ فلاں آپ سے بہت ناراض ہو گیا تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اب میں یہ سنیوں میں نے جانا ہی نہیں ہے. تو میں بطور سنی متعارف تھا اور کچھ چار آدمی جانتے تھے مجھے. اب یہ بھارت سمجھ میں نہیں آئی ایک بات میری، ناراض ہو گیا. تو بولا تم گزر رہے تھے، یہ تو حالانکہ ناراض تو تھا ہی، لیکن تم نے اس سے مسکرا کر پرتپاک طریقے پر ملاقات کی. تو اس نے خود ہی اس نے بعد میں مجھے کہا کہ نہیں الیاس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے، کتنا اچھی طرح ملتا ہے. اچھا تو یوں وہ مطلب پلٹ کر آ گیا، پھر ٹنا ٹن سنی بن گیا الحمدللہ. تو یوں مطلب مسکراہٹ کے بڑے فوائد ہیں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, मलावी, सेंट्रल अफ्रीका से। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में एक सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कोरंगी में बड़ा ही ज़बरदस्त इज्तिमा था जिसमें निगरान शूरा ने बयान भी फरमाया था। तो निगरान शूरा का एक बयान का अंदाज़ है वो अपनी जगह, मगर बयान के दौरान अशआर और उसमें जो नारे और सहाबे कराम की अज़मत और मोहब्बत के नारे, तो उससे एक कैफियत अलग हो जाती है, एक माहौल अलग हो जाता है और गोया कि दिल की बैटरी चार्ज हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये माहौल हमारे इलाकों में भी क्रिएट हो, मगर वहाँ ज़बान का बैरियर, उर्फ़ और तरीक़ेकार का बैरियर, तो ये वहाँ हम करने में किस अंदाज से कामयाब हो सकते हैं? आपने कितने मुसलमान किए अब तक? आप तो जब देखो मदनी चैनल पर खड़े होते हैं, तो आप बनाए माहौल, बताओ तो उसे कितने किए? तकरीबन 3000। 3000। अल्लाह। तो अब ये कि इतने तो निगरान शूरा ने भी नहीं किए जितने आपने माशाअल्लाह किए। तो आप खुद अब बैरियर हटाएं और कैरियर बनाए सबका और धूम मचाएं। तो हर एक कहने के अगर कुछ अपने अंदर ऐसा खुद एतमादी की फजा कायम करे अपने ऊपर और कोशिश करे, तो पहले कहाँ इसका तसव्वुर था? जब दावत इस्लामी जब शुरू में बनी और आगे लेकर इसको चलने वाले चले, तो कोई तसव्वुर नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं था। तो आहिस्ता 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 काम को काम सिखाता गया और अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा तसव्वुर था कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग फैज़ान मदीना का भी कोई तसव्वुर थे कि हम झोंपड़ी नहीं बना सकते तो मस्जिद कैसे बनाएंगे? हमें कोई अपने पास खड़ा नहीं रहने दे, कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हमें सही बोलता हूँ, अल्लाह ने बड़ा नवाजा। एक बात जगह मुझे बयान करने से निकाल भी दिया था मस्जिद से, नो लिफ्ट की, कहीं निकाल दिया, मना कर दिया कि नहीं बयान नहीं करने देंगे। हालांकि थे वो अपने ही, लेकिन वो शुबा मेरी शोहरत नहीं थी ना इतनी। आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह अपना पैगाम समझ में आता गया। अल्लाह की रहमत हो गई। और किसी ने मुझे कहा कि साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम आपको बदीन खोस्की का दौरा करवाएंगे। सबसे पहला मेरा कराची के बाद वहाँ का हुआ था। तो दौरा में चौका मिलेगा, दौरा तो बड़े बड़े लीडर लोग करते हैं हमारे यहाँ। दौरा ये होता था, यूरोप का दौरा किया तो अमेरिका का दौरा किया, तो मैं और दौरा करूंगा? शायद बदीन का नाम भी नहीं सुना होगा मैंने, सुना हो तो खोस्की का तो कंफर्म नहीं सुना था नाम मैंने। तो खैर वो फिर हमने दौरा किया, वहाँ हैदराबाद भी गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ये काम बढ़ता चला गया और हर तरफ सुन्नतों की बहारें आ गई। तो ये कि काम करने से होगा, इस्तिकामत के साथ। दिल तोड़ेंगे लोग, लेकिन दिल तोड़ने वालों के मुकाबले में दिल जोड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। मेरे साथ भी यही होता था कि अगर कोई एक दिल तोड़ता था ना, तो 100 दिल जोड़ने वाले सामने होते थे। ये हकीकत है। हम समझते हैं कि उसने मेरे को झाड़ दिया और मेरे को तंज कर दिया, लोग यूँ बोलते हैं, लोग अच्छा भी तो बोलते हैं ना। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ लेटर्स खोले जा रहे थे, तो इसमें बाद लेटर कुछ थे जिसमें गालियां थी। जो आपके खादिम थे जो भी उस वक्त, उन्होंने जरा कहा कि हुजूर ये यूं गालियां निकाल रहे हैं, बड़े ये हैं वो हैं, इनके खिलाफ केस करना चाहिए। तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया ना, ये हम लोग आला हज़रत के फॉलोवर्स हैं, बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया कि ठीक है केस करते हैं, लेकिन ठहरो, इन्होंने खत में मुझे शेखुल इस्लाम लिखा है और अच्छे अच्छे अलकाब दिए हैं, दुआएं की हैं, पहले इनमें जागीरें तकसीम कर दो, इनको प्लाट अलाट करवा दो, इनको तोहफे दो, गिफ्ट दो, इनाम दो, फिर इनके खिलाफ केस भी कर दो। मैंने यूँ समझा दिया कि अगर कोई बुरा भला कहता भी है तो अच्छा कहने वाले भी तो मौजूद हैं, तो हम अच्छे कहने वालों की तरफ नज़र रखें, बुरे कहने वालों की तरफ नज़र करके क्यों अपना दिल थोड़ा करें, दिल को मतलब तोड़ें। यूँ मतलब हमें दिल बड़ा रखना चाहिए और काम
करते रहना चाहिए, काम करने से ही होता है। तो शुरू में आदमी गलतियां करता है, लेकिन ठोकरें खा के आखिर पक्का हो जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम वज़ाताई तुर्की से हाजिर हुआ हूँ। इस पर रहनुमाई फरमा दें कि हमें कैसे मालूम हो कि हमसे अल्लाह राज़ी है या फिर नाराज़ है। अल्लाह अल्लाह। बाद औक़ात आदमी के मुंह से कोई ऐसा सेंटेंस, कोई जुमला, कोई लफ्ज़ निकल जाता है जो अरबी में कलेमा बोलते हैं। कोई सा कलेमा वो बोल देता है जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमेशा के लिए उससे राज़ी हो जाता है। और बाद औक़ात किसी शख्स से ऐसा जुमला लफ्ज़ निकल जाता है, कलेमा, कि अल्लाह पाक उससे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाता है। हदीस शरीफ में ये मज़मून है। एक अल्लाह की खुशी का कलमा बोल देता है, कोई अल्लाह पाक की नाराज़गी का कलमा कभी बोल देता है। सबके साथ ऐसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऐसा कोई जुमला बोलते हैं, नहीं, ये भी है हदीस तबाक में, और बोलने वाले को पता नहीं होता। तो अगर हमको पता ही चल जाए तो फिर तो यही तो है ना कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर हमें पता नहीं है, और पता चलाने का कोई ऐसा जरिया भी नहीं है। तो इसलिए हर वक्त बंदा अल्लाह पाक से डरता रहे और अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना हो, तो होपलेस भी नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान करीम में अल्लाह की रहमत से होपलेस ना हो, मायूस ना हो, उसकी रहमत पर नज़र रखे और उसके कहर व गज़ब से बेखौफ भी ना हो, दोनों के बीच में रहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Serdar Attari, uw knecht. Ik woon in Nederland. Ik kom oorspronkelijk uit Turkije. Mijn vraag aan u is, wanneer wij u aanspreken, dan moeten wij onze blik omlaag houden. Dat heb ik zo geleerd. Maar ik wil graag u aanstaren. Ik weet de oplossing daarvoor niet. En 6 weken geleden ben ik bij Dawet Islami gekomen. Daarvoor wist ik helemaal niks van u af. Ik was eigenlijk ook niet echt zo'n tegenstander van een sheikh. Maar alhamdulillah, vanwege de omgeving heb ik meer vertrouwen gekregen. En door Sefras bij heeft me ook daarmee veel geholpen. Ik wil graag een dua van u hebben, zodat wij Dawet Islami in Nederland kunnen verspreiden en over heel de wereld. En ik wil daar graag ook aan deelnemen. En vergeet mij niet in uw dua's, inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. इनका सवाल का खुलासा कुछ यूँ है, ये हमारे सरदार अतारी, और इनका ये है कि 6 वीक पहले मुझे इस तंजीम को नहीं जानता था मैं, दावत इस्लामी को, 6 वीक पहले, और शेख का भी उनको ज़रा दूर थे रहते कि ये मैं नहीं मानता इन चीज़ों का। और ये अर्ज़ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल की बरकत से मेरा ज़हन बना और मैं हॉलैंड से अब कराची आया हूँ आपकी ज़ियारत के लिए और इल्म दीन सीखने के लिए। और इनका ये सवाल है कि मेरा दिल है कि मैं आपकी ज़ियारत करता रहूँ, मगर मैंने सुना कि अगर किसी से बात करें तो निगाह नीचे रखनी चाहिए। अब इस मेरे लिए हाल आप इरशाद फरमाएँ। और इनका भी है कि दुआ फरमाएँ हॉलैंड में मज़ीद दीनी काम की बहारें हों। ये 6 वीक पहले तो पहले से दाढ़ी और जुल्फें लंबे बाल थे मगर दाढ़ी छोटी अब फैशन वाला भी जी जी जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह नीयत की उन्होंने सब और नहीं बनाना और पीछे जो ऐसे अब ये जुल्फों की नियत कर लें तो कर लिया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह दुआ फरमाएं हॉलैंड में मज़ीद अल्लाह दीनी काम बहारें। इस्तिकामत दे माशाअल्लाह। वैसे ये कि चेहरे को देखना जो है ना अच्छी नीयत से हो तो हरज नहीं है। माँ बाप मोहब्बत की नज़र से देखे है ना, शफकत की नज़र से, तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। यूँ चेहरे को देखना मुतलकन मना नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के